अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? Yes, you said that. Yes, very good. Sharing. Hello. Yeah, please pay attention. Yeah. Express the feelings. Wonderful. Sharing. Express the feelings. Yes. What is communication? Talking with people. Convey the message. Message from one end to another end is a communication. That's good. Yes. Yes. Yeah, you. What is communication? Yes. No. Why no? Why? Say something. Think and say. I'll come back in 30 seconds. I'll come back to you. Yes, please. Yes, please. This said. What is communication? What do you mean by communication? Yeah. Knowing each other. Fine. That happens with communication. Yes. What is else? What else? Yes, please. Sharing emotions. Any example of that? Expressing our love to our parents. Yes. Mama. Huh? Is a communication. Is a method of communication to obtain knowledge, to gain the knowledge. Yes. Yes. No. No problem. But pay attention. Okay. Fine. Next. Yes, next. सम्मान कैसे होता है? Yes. Yes. Action से सम्मान होता है? Because of action, can you communicate? Any example? Action से communication. Okay, crying is action. और कोई? Smile. कुछ कम्युनिकेट हुआ? कुछ कम्युनिकेट हुआ? क्या कम्युनिकेट हुआ? Something has messed up. Isn't it? Okay. Yes. Next. Thoughts, messages. Next. Some imagination. कल्पना. जो अभी आपने बोला. Feelings, emotions. Is it right? Next. In some co-exchange, the exchange of all these things are called communication. Is it right? Do you agree to all these things? Yes. Fine. Next. How many types of communication are there? How many types of communication? Yes, please. Yes. Two major types. What are the? Pardon? Personal communication and mass communication. Okay, I agree to this. Yes. और कोई बात? How many types of communication? Basically two types. One is verbal communication, and second is non-verbal communication. Is it okay? ये verbal में भी personal communication होता है और mass communication होता है. Non-verbal में भी personal communication होता है और mass communication. Is it okay? Next. What are verbal communication? What are verbal communication? Where we use the words. जहाँ हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बोलने के लिए, चाहे लिखने के लिए, ये सब कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है? वर्बल कम्युनिकेशन. आवाज का उतार चढ़ाव. हाँ? प्यार से किसी ने बोला कुछ समझ में आता? डांट कर किसी ने बोला समझ में आता? क्यों समझ नहीं आता? समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ? ये क्या था? What? ये प्यार वाला कम्युनिकेशन था क्या? प्यार वाला था? नहीं ना? तो that is something problematic communication. है ना? समझ में आता है कि नहीं समझ में आता? समझ में आता है. शब्दों का उतार चढ़ाव, बड़े अक्षर. आजकल आप लोग ना टेक्स्ट करते हो, है ना? 2 बार लिखा मैसेज में, 2 बार लिखा नो. उधर से किसी ने कुछ पूछा, हमने इधर से क्या लिखा? नो. दूसरे फिर से बोलना, तो अपन ने क्या किया? कैपिटल में लिखा नो. इसका कुछ मतलब है? इसका कुछ मतलब है या नहीं है? क्या मतलब है इसका? बड़े अक्षर में लिखा तो क्या मतलब है?
नहीं बोला ना यार, होता है कि नहीं ये मतलब? हाँ, नॉन वर्बल बिना शब्दों के कम्युनिकेशन, बिना शब्दों के हो सकता है कम्युनिकेशन। एक्शन जैसे एक आध दो एक्शन बताओ। यस, जैसे शेक हैंड वहां दिखाया है, शेक हैंड, डज इट मीन समथिंग? यस, वी आर ग्रीटिंग ईच अदर, इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और क्या हो सकता है कम्युनिकेशन नॉन वर्बल? हाँ, नॉन वर्बल है ना सब? यस, नेक्स्ट। किस किस से कम्युनिकेशन करना पड़ता है? फ्रेंड्स के साथ, ओके, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, एग्री, डॉक्टर के साथ, अच्छा, अभी एडवोकेट के साथ नहीं करना पड़ता, डॉक्टर से करना पड़ता है, एग्री, यस, रिलेटिव्स, वेरी गुड, किसने बोला? वेरी गुड, रिलेटिव्स, अननोन पर्सन से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। कैसे कैसे मेरे को नहीं मालूम। अननोन पर्सन से क्या जरूरत है कम्युनिकेशन की? If they ask something, we have to reply, or we have to ask something, हाँ? ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? Where is this shop? ये वाला शॉप कहाँ है? बिल्कुल अनजान आदमी को पूछ लिया ये वाली दुकान कहाँ पर है, isn't it? है ना? कम्युनिकेशन अलग अलग लोगों से। नेक्स्ट, मित्रों से, परिवार से, जान पहचान के लोगों से, अनजान लोगों से, खुद से कम्युनिकेशन अपने आप से करना पड़ता है। कैसे कैसे? What is that? That is also a way of communication. Is it okay with us? Good. प्रश्न मेरा ये है, क्या आपको अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है? अरे ऐसे कैसे? कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन है, अलग अलग तरीके से क्यों करना पड़ेगा? हाँ, मेरे को एग्जांपल देखो कैसे। हाँ, ये टीचर्स के साथ बोलते तो मैम आप ये कैसे करना, और फ्रेंड के साथ ये बोल तो ये कैसे करना। एब्सोल्युटली ऑन डॉट, एब्सोल्युटली राइट, वंडरफुल, मजा आ गया मेरे को। और कोई बताएगा? अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कम्युनिकेशन। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल उसने दे दिया। आप बताओ कोई एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल, बहुत एग्जांपल, हजारों एग्जांपल मिलेंगे इसके। कम ऑन, आई वांट वन मोर एग्जांपल। अलग अलग लोगों के साथ, अच्छा ऐसे बताओ, जान पहचान के लोगों के साथ जैसा कम्युनिकेट करते हैं, अनजान लोगों के साथ क्यों ऐसे करते हैं? आपकी मम्मा के साथ आपको कोई आपके मन में, आप मन से बहुत खुश हो और मम्मा के साथ शेयर करना है अपनी खुशी, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका बताओ क्या हो सकता है? बहुत खुश हो और मम्मा के साथ शेयर कर रही हो खुशी, कैसे करोगी? अरे कैसे करोगी? मम्मा के साथ नहीं कर सकती, सॉरी, गलती हो गई मेरे से। फ्रेंडी के साथ कैसे करो? चलो, व्हाई दिस साइलेंस? फ्रेंड से ऐसे गले लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे? हाँ, हक करेंगे फ्रेंड को, मामा को भी कर सकते हैं, मामा के ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? यस। अनजान लोग से भी ऐसे कर सकते? नहीं। अनजान लोग से ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे नहीं कर सकते। अलग अलग लोगों से याद रखना, मेरी ये वाली बात, मेरी ये बात एक मैसेज के रूप में दे रहा हूं आपको। सारों के साथ एक समान कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ता, अलग अलग टाइप के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। सेल्फ से कम्युनिकेशन कर रहे, सेल्फ से, भाई से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके साथ में हंसी मजाक से, बात से, उसको हाथ मार के, हाँ, दो बार बोल रही, सुन रहा नहीं क्या? हाँ? और सेल्फ से कम्युनिकेशन करेंगे तो भी ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? चुप बैठे हैं तो भी कम्युनिकेट हो रहा है, इज इट राइट? अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप से कम्युनिकेट करना पड़ता है। एग्री? ऑल एग्री? My question to you is
शुरुआत कहां से होती है कम्युनिकेशन की? पहला कम्युनिकेशन आपकी जिंदगी का पहला कम्युनिकेशन कब हुआ? जल्दी बोलो, फास्ट, आई वांट फास्ट आंसर। मैं देख रहा हूं कि कौन इंटेलिजेंट ज्यादा है, कौन रिएक्टिव है, कौन के रिस्पॉन्सेस आते हैं। कम ऑन, पहला कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में कब हुआ था? मदर यानी हाँ, मदर यानी माँ। मैं कम्युनिकेशन पूछ रहा हूं, मैं मदर का मतलब नहीं पूछ रहा। मदर यानी कम्युनिकेशन मैंने पूछा पहला कम्युनिकेशन कब हुआ? तो आपने बोला माँ, तो मैं समझा नहीं कम्युनिकेशन हुआ माँ यानी क्या। मेरे को एक्सप्लेन करके बोलो, माँ यानी क्या? जब हमने पहली बार मम्मा को माँ कहकर बुलाया था तब। जब मैंने पहली बार मेरी मम्मा को मम्मा करके बुलाया था, हाँ, वो मेरा पहला कम्युनिकेशन था। इज इट राइट? उसके पहले कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। उसके पहले ये बोल रहा है, उसके पहले हुआ था। जब हम बॉर्न किए तब हमने क्राई किया था। दैट वाज द कम्युनिकेशन, दैट वाज द फर्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ माय लाइफ। इज इट? वो कुछ और बोलना चाहती है। ओह माय गॉड, मेरा पहला कम्युनिकेशन कब हुआ था? मदर के पेट में थे, अपने मदर के पेट में किक किया। उस समय मम्मा को क्या फीलिंग आया होगा? इमोशन क्या थे मम्मा के? खुशी हुई होगी कि नाराजगी हुई होगी? खुशी हुई होगी। हाँ, अभी भी वो किक किया तो खुशी होगी ना? मम्मा को खुश करो, मतलब समझ गए? कल मम्मा आएंगी ना, मैं आपको बोलूंगा मम्मा को खुश करो, मतलब समझना क्या करना अपने को। गॉट इट? अब हम पूछेंगे अभी खुशी मिलेगी क्या? हाँ, नेक्स्ट, दीज आर ऑल कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट, संवाद का पहला उदाहरण, बुनियादी जरूरतों के लिए, बेसिक नीड के लिए कम्युनिकेट करते हैं, चाहे हम रोकर करते हैं, है ना? शुरुआत में बोलना नहीं आता था तो भी कम्युनिकेट करते थे। भूख लगी तो बताते थे, है ना? खुश हुए तो मुस्कुराते थे। सब तरीके के कम्युनिकेशन थे। भाषा कैसे सीखते हैं? भाषा कैसे सीखते हैं? लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? जो भी लैंग्वेज घर में बोली जाती है वो विद ग्रामर आ जाती है, उसके लिए ग्रामर अलग से नहीं सीखना पड़ता। इजंट इट? हाँ, मारवाड़ी परिवारों में जन्म लिए हैं, पूरे अहमदनगर में लोग घर में कौन सी भाषा बात करते हैं? मारवाड़ी। फिर हमने उसमें मराठी मिक्स कर दी, अभी मराठी मिक्स्ड मारवाड़ी में बात करते हैं। इजंट इट? अहमदनगर में मैंने देखा है लोगों को मराठी मिक्स्ड मारवाड़ी में बात करते हैं। इजंट इट? मैं क्यों नहीं कर रहा हूं ऐसी भाषा में बात? क्योंकि मैं इस एरिया में जन्म नहीं लिया था। आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर, सेंट्रल इंडिया। वहां पर हिंदी ज्यादा चलती है, वहां मारवाड़ी नहीं चलती घरों में। अपने जैन घरों में भी हिंदी चलती है, तो मेरे को वो वाली भाषा आती है। कोई अंग्रेजी परिवार में जन्म लेते हैं तो वो कौन सी भाषा सीख लेंगे? इंग्लिश। अभी मैं पिछले हफ्ते यही वाले वर्कशॉप के लिए मैं विजयवाड़ा के पास में एक छोटा सा गांव है, विजयवाड़ा के पास में अमरावती, नया कैपिटल बन रहा है आंध्र प्रदेश का। मैं वहां गया था और जैसी प्यारी लड़कियां थी वहां पर, उनके साथ में मैंने ये वर्कशॉप की। तो वो वर्कशॉप करने में मेरे को डिफिकल्टी इसलिए महसूस हुई क्योंकि उनको या तो इंग्लिश आती थी और या फिर उनको तेलुगु आती थी। मेरे को तो तेलुगु का एक वर्ड भी नहीं आता। तो भाषा हम कैसे सीखते हैं? जहां रहते हैं, जिस तरीके की भाषा की आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, बहुत इजीली यंग एज में बहुत इजीली 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, 5 भाषा सीखी जा सकती है अगर हम उसके साथ में उस तरीके के लोगों के बीच में रहें तो भाषा सीख लेते हैं। इज इट राइट? और ये भाषा क्या होती है? फाइनली कम्युनिकेशन की काम है। क्या ये रिश्तों को प्रभावित करता है? कम्युनिकेशन रिश्तों को प्रभावित करता है? Does it impact on the relationship? Communication impact on relationship? मेरे को एग्जांपल चाहिए। देखो, मैं मेरी सारी बातें एग्जांपल के साथ बोलता हूँ आपको। आपने भी यस नो बोला तो मेरे को एग्जांपल चाहिए। यस, बैठिए बोलो, चलता है। बॉन्डिंग है, क्लोजनेस है। यस, एब्सोल्युटली राइट। अपोजिट एग्जांपल देगा कोई? अपोजिट एग्जांपल। Communication, with the communication it impacts on relationship. ये पॉजिटिव एग्जांपल।
मैं एक निगेटिव एग्जांपल चाहता हूँ। यस, अगर हम किसी से नाराज है तो अगर हम कम्युनिकेट करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमने अगर नाराज है और हमने कम्युनिकेट किया तो मैसेज तो जाएगा कि हम नाराज हैं, और फिर उसमें रास्ता निकालेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। इज इट राइट? वेरी गुड। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉब्लम में भी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रख के कम्युनिकेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर निगेटिव एटीट्यूड रख के कम्युनिकेट किया तो निगेटिव आएगा, उससे दुख होगा। पॉजिटिव रिजल्ट आया तो खुशी होगी, इट विल गिव हैप्पीनेस, अदरवाइज इट विल गिव सैडनेस। क्या आपने कभी देखा कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारे अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी माता पिता के साथ हमारे जो एक सहजता थी ना कम्युनिकेशन में, फ्रीनेस कम्युनिकेशन में जो फ्रीनेस थी, वो फ्रीनेस जैसे जैसे एज बढ़ती है वो फ्रीनेस कम होने लगती है। ऐसा महसूस करती है? नहीं। मैंने भी एक एग्जांपल दिया, उसने बोला कि माँ के पेट में थी किया। कितने लोगों ने 3 इडियट्स देखी? सबने देखी। क्या सुना है यार? हाँ, ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल। रखना हाथ नीचे, क्या खड़ी रही क्या? उसकी सहेली ने बोला उसको। ये एक्शन का मतलब यही था। मैं बात कर रहा था कम्युनिकेशन की। हम मैसेज जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हमारा कम्युनिकेशन का तरीका बदलने लगता है। एंड जो बातों से पहले बचपन में कितने लोगों को याद है कि आपने अपने मम्मी पापा के साथ में जिद की थी? जिद बहुत लोगों ने की ना, याद है आपको? की तो सबने, जिन्होंने आदमी थे उन्होंने भी जिद की छोटी, लेकिन उनको याद नहीं। लेकिन आपको याद है ना? ओके, आपकी जिद पूरी करने में उनको खुशी भी हुई होगी उस समय। फाइनली यस, अभी जिद करो, अभी इस एज में जिद करो। अच्छा, और 10 साल बाद आपने जिद की तो विद द ग्रोइंग एज कम्युनिकेशन में फर्क आ जाता है। आता है कि नहीं आता? हाँ, 3 इडियट्स में उसने बोला ऑल इज वेल, एक लाख मारा हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर से क्या बोली उसने? फिर से बोल ऑल इज वेल, फिर ऑल इज वेल बोली तो फिर से उसने लाख मारा। हाँ, अभी लगा के देखो, बोला जस्ट अभी कल मम्मा आएंगे ना, मम्मा ऐसे जस्ट टच करके देखना उसको, क्या करेगी वो? खुश होगी? नाराज होगी? कितने लोगों के बीच में नाराजगी कैसे बताएगी वो? आंखें दिखाकर, है ना? सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती, याद रखना मेरी ये वाली बात, मम्मा आपके साथ में ऐसा क्यों बिहेव कर रही, ये क्वेश्चन मन में मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हमारे रिलेशनशिप में फर्क आने लगता है। और ये नेचुरल है। मम्मा के साथ होगा, पापा के साथ होगा, भाई के साथ होगा, बहन के साथ होगा। बहन के साथ का एक एग्जांपल बताऊं, ये 2 हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैरिड है, इसलिए एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोग जो सब अनमैरिड है ना, कितने लोग हैं जिनके घर में सिस्टर्स हैं? रियल मैक्सिमम। ओके, डन। ये सारी जितने लोगों ने हाथ उठाए जिनके पास रियल सिस्टर्स है, मेरी बात याद रखना जो मैं कह रहा हूं, याद रखना। मैं आपको है ना 10 साल बाद 15 साल बाद याद आऊंगा फिर से। कोई तो भी एक अंकल आए थे और बोलते गए थे ऐसी बात। ये जितनी भी रियल सिस्टर्स जिनके पास है ना, ये लड़ती हैं आपस में, घर में छोटी छोटी बात के लिए लड़ती हैं। और ये सारी लड़ने वाली बहनें जब शादी हो जाती ना, तो प्लान बनाकर मायके आती है, तू कब आ रही, जब तू आए तभी मैं आऊं, तब तू आए तभी मैं आऊं। इतना प्यार शादी के बाद में, लड़ने कूटने वाली, एक दूसरे को ऐसे पकड़ के मारने वाली बहनें है ना, प्यार बाद में ऐसा है। सो इट डिफरेंस आता है, डिफरेंस। व्हाट आई वांट टू एस्टैब्लिश, कम्युनिकेशन में डिफरेंस आते रहता है, फर्क आते रहता है। आप ये मत समझा करो हेलो, आप ये मत समझो कि भाई बदल गया, माँ बदल गई, फ्रेंड बदल गए। Because of the change in the communication, it happens naturally. इससे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। ये बात ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन। Is it okay class? Next. वाओ,
एक एक्टिविटी करेंगे। कितने लोगों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना निकल के बाहर आओ? कम ऑन, कम ऑन, आ जाओ इधर आओ। और जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना है वो भी बाहर आओ। Get this straight. Listen to me. मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ला रहा हूँ। हमारा अभी जो एक्टिविटी है वो क्या है? मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लाता हूँ। वो स्टेटमेंट हिंदी में है, मैं उसको कोशिश करके इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा आपके समझने के लिए। मैंने अभी कोशिश की मेरे ऑफिस में फोन करके बोलने की कि लंच के बाद हो सकता है मैं आपको इंग्लिश स्लाइड दिखाऊं सारी। आर यू कंफर्टेबल विद दैट? मोर कंफर्टेबल है ना? हिंदी इज नॉट दैट कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर वी पीपल। हमारा सारा पढ़ाई जो हो रहा है वो अंग्रेजी में हो रहा है, ठीक है? तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको आफ्टर लंच इंग्लिश स्लाइड्स दिखाएं, है ना? मैं अभी हिंदी में स्टेटमेंट ला रहा हूं और वो स्टेटमेंट में कोशिश करके अपन सब साथ में मिलकर कोशिश कर लेंगे उसका मतलब इंग्लिश में करने का, ओके? समझने के लिए, ओके? नाउ करना क्या, समझ के करना क्या है? समझ के करना क्या? स्टेटमेंट आएगा अभी, अब यहां से आगे फॉर अनदर 10 मिनट्स आप बोलोगे कुछ भी नहीं, यू विल नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, ओके? मुंह बंद, ओके? स्माइल कर सकते हो लेकिन आवाज नहीं, बोलना नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट से मैं एग्री हूं, इफ आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इधर खड़े होना, इस तरफ। इफ आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, इधर खड़े होना। और अगर मैं स्टेटमेंट के साथ में नाइदर एग्रीमेंट में हूं नॉर डिसएग्रीमेंट में हूं तो इधर खड़े होना, इधर बीच में, न्यूट्रल। एग्री हुए तो किधर? इधर मेरे राइट में। अगर डिसएग्री है तो मेरे लेफ्ट में। और अगर न्यूट्रल है तो सामने। बात समझ में आ गई सबके? नाउ यू हैव, अच्छा दूसरी बात यह है कि आपका अपना खुद का ओपिनियन, दिस जनमत मतलब ओपिनियन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओपिनियन। मैं आपका ओपिनियन मांग रहा हूं और आपका ओपिनियन आप ही का ओपिनियन है। आपकी कोई सहेली है, खास सहेली है, उसका ओपिनियन अगर एग्री है और आपका मन में ओपिनियन डिसएग्री है तो उसको फॉलो मत करो, अपने मन को फॉलो करो। इज इट ओके विद अस? एंड माय फर्स्ट स्टेटमेंट, थोड़ा पीछे सर। हाँ, सिर्फ मम्मी पापा व बच्चे, ऐसी छोटी फैमिली, ए स्मॉल फैमिली विद पापा मम्मी एंड चिल्ड्रन, ऐसी फैमिली में बेटियों की पढ़ाई और करियर के लिए मददगार होती है। इट इज हेल्पफुल, सच फैमिली इज हेल्पफुल फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। स्मॉल फैमिली की बेटियां ही पढ़ाई में हेल्पफुल होती है, ऐसी फैमिलीज। एग्री दिस साइड, डिसएग्री दिस साइड, न्यूट्रल दिस साइड। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, यू हैव टू फॉलो योर माइंड, you have to follow your mind, you have to follow your mind where you want to be neutral, this way. How many of you are neutral? Okay, you agree with this, and you all disagree. You all disagree. She has got courage even then to agree with this statement, and you people are neutral. Okay, got it. Now my next statement. रूरल एरिया गर्ल्स के कंपैरिजन में अर्बन गर्ल्स थोड़े से लोग इधर आ जाओ, मैं अर्बन गर्ल्स को एजुकेशन के ज्यादा मौके, ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। किधर है? न्यूट्रल, ओके। और कितने लोग न्यूट्रल है? शी अलोन, ओके। बाकी सारे लोग एग्री करते हैं, है ना? व्हाट अबाउट यू? एग्री कर रही, ओके, ठीक है। माय थर्ड स्टेटमेंट,
नॉर्मली, सामान्यतः, नॉर्मली majority of the girls are their papa are their best friend. Normally papa are the best friend of the girls. You don't have to say. You don't have to say. इसको जानते पहले. What are you want to be there? You people are, you four are neutral. You are also neutral. Okay. Remaining you agree. And you disagree. Okay. Okay, got it. My next statement. आर्थिक स्वतंत्रता की अपेक्षा परिवार पर विश्वास रखकर जीवन शुरू करने को महत्व देना चाहिए. माय गॉड, अभी मेरे को इंग्लिश में करना है इसको. हाँ? इंस्टेड ऑफ फिनेंशियल है क्या इंग्लिश में? ओके, दैट्स गुड. मैं फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं इंग्लिश में. A girl should give more weightage to her trust on the future family than ensuring the financial independence. Future family. 5 साल बाद, 10 साल बाद फ्यूचर फैमिली बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना? हाँ ना? छुटकी. फ्यूचर फैमिली को डिसाइड करते समय फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के बजाय हमने फैमिली के ट्रस्ट के फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे, ऐसा यहां पर लिखा है. कौन एग्री करता है इधर, डिसएग्री करता है इधर, न्यूट्रल है तो इधर? फ्यूचर फैमिली सिलेक्ट करेंगे, कभी तो टाइम आएगा. तो हम ऐसी फैमिली सिलेक्ट करेंगे जहां फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है के बजाय स्टेटमेंट ऐसा बोलता है कि जिस फैमिली में ट्रस्टवर्दी फैमिली हो उसको सिलेक्ट करेंगे के बजाय फिनेंशियल इंडिपेंडेंस. चल नहीं, तू अपना कर. फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम ऑफ खर्चा, अपने मर्जी से. अपना सोच, सहेली को मत दे. हेलो, अपना सोच, सहेली को मत दे, फ्रेंड को मत दे, वो कहां जा रही है, खुद सोच. वैल्यू, ट्रस्टवर्दी, फिनेंशियल इंपॉर्टेंस. ओके, न्यूट्रल कितने? ये सब न्यूट्रल है. माय गॉड, बहुत सारे न्यूट्रल, उधर भी न्यूट्रल वालों के हाथ. फाइन, गॉट इट. नेक्स्ट स्टेटमेंट. All what is problematic happening with the girls themselves, उनका व्यवहार, लड़कियों का व्यवहार, their way of, their style, their habits is the cause of the problem for the girls. The way of the girls is the cause for the problem of the girls. Girls themselves are the cause for their problems. बोलना नहीं है. You don't have to say anything. Agree, disagree, or neutral. What do you say? Yeah. You people agree? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? हाथ उठाओ. आप भी एग्री कर रही हैं. Okay, got it. बाकी लोग न्यूट्रल है सर. You all disagree with this? हाँ? वो चुटकी का है. हाँ. फाइन. नेक्स्ट. की अपेक्षा ग्रामीण लड़कियां ज्यादा संस्कारित होती हैं. अर्बन, रूरल गर्ल्स आर मोर संस्कारित कल्चर्ड. रूरल गर्ल्स आर मोर कल्चर्ड देन द अर्बन गर्ल्स. बोलना नहीं है, यस नो नहीं करना है. You are neutral? Okay. You disagree? You people disagree with this? Okay. You all agree? Neutral component? Hello? आप लोग न्यूट्रल हैं. आप लोग डिसएग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं. You people are disagreeing to this. Okay, fine. Next one. मेरे को वो सेक्शन से वो तीनों चारों पांचों गर्ल्स, मैं पहला जवाब आपका ले रहा हूं, फिर बाकी लोग से ले रहा हूं. नेक्स्ट वाले के लिए
लड़कियों ने उच्च शिक्षा के लिए भविष्य में घर की जिम्मेदारी का ध्यान में रखकर कोर्स और करियर को तय करना चाहिए. गर्ल्स फॉर हायर एजुकेशन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इसको ध्यान में रखकर सिलेक्शन ऑफ द कोर्स, फ्यूचर करियर, इसको ध्यान में रखकर ही करना चाहिए. यू एग्री, यू डिसएग्री? यस, चारों पांचों ठीक है. बोलना नहीं, इधर ही खड़ा रहना. फाइन. यस, एवरीवन. तू कहां जा रही है? इधर. हाँ. You people disagree with this? Huh? Okay. How many of you are neutral here? 1, 2. ये भी न्यूट्रल है? नहीं. Disagree. दो लोग न्यूट्रल है. You agree? No. I am neutral. 3. और कौन है? न्यूट्रल 3. Fine. बाकी सब लोग एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री करते हैं. डन. नेक्स्ट वन. जिसे का अच्छी तरह से उपयोग करते आना जरूरी है. टू बी स्मार्ट यू शुड हैव द एबिलिटी टू यूज द टेक्नोलॉजी. यू डिसएग्री? यू पीपल एग्री? न्यूट्रल. ओके. न्यूट्रल. ओके. फाइन. नेक्स्ट वन. लड़कियों की सुरक्षा के लिए लड़कों की व पुरुष मानसिकता को बदलना जरूरी है. फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स द मेल मेंटालिटी हैज टू बी चेंज्ड. हेलो, डोंट से. यस. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यूट्रल? 1, 2, 3. दो अलग अलग लोगों के हाथ है कि एक ही के दो हाथ है? हाथ दिख रहे थे, पब्लिक नहीं दिख रही थी मेरे. गॉट इट. 3. फाइन. नेक्स्ट स्टेटमेंट. लास्ट वन इज फॉर हायर एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स को शहर में जाने के बजाय गांव में ही कॉलेज होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सिटीज फॉर द हायर एजुकेशन, फॉर गर्ल्स it is necessary to have the colleges at the local level itself, at the villages itself. You disagree? Neutral कितने? Neutral है. And remaining? Agree करते. Fine. Thank you so much. Please take your seat. क्या कर रहे थे? आइदर हम एग्री हो रहे थे और हम डिसएग्री हो रहे थे और हम न्यूट्रल हो रहे थे. इज इट राइट? मैंने कहीं पर फोर्स किया आपको कि सब एग्री हो जाओ, सब डिसएग्री हो जाओ? ऐसा मैंने फोर्स किया? किसके मन से कर रहे थे? अपने खुद के मन से कर रहे थे. राइट? मैंने ऐसा व्हाट डू यू थिंक? मैंने ऐसा क्यों करवाया? मैं क्या जानना चाहता हूं, क्या मैसेज देना चाहता हूं? यस. खुद के डिसीजन खुद कैसे लेंगे? खुद लेने चाहिए. खुद के डिसीजन खुद लेने चाहिए. ओके. वी शुड लिसन टू अवर माइंड. वी शुड लिसन. मैं इसलिए ये एक्टिविटी कराया कि मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ. वी शुड लिसन टू अवर माइंड. ओके. हैव योर ओन ओपिनियन. यू शुड हैव योर ओन ओपिनियन. इसके लिए मैंने ये करवाया. यस. बी इंडिपेंडेंट. हैव योर ओन ओपिनियन. बी इंडिपेंडेंट. और कोई बात? एनीथिंग एल्स? क्यों करवाया होगा मैंने ये? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन. ये समझने को मिलता है इससे. ओके. और कोई बात? यस प्लीज. अच्छा ये बताओ, यहाँ जितनी भी ये बेटियां हैं ये सब एक ही समाज की? कौन से समाज की? जैन समाज की है ना. जैन समाज का एक कल्चर, एक अपना कल्चर है ना. हम कौन से भगवान को सब लोग मानते हैं? महावीर को ही मानते हैं. हमारा महामंत्र कौन सा है? नौका. सभी लोग नौका को महामंत्र मानते हैं. इज इट राइट? हमारे घरों में खाने पीने का तरीका लगभग एक जैसा है कि नहीं है? प्लस माइनस 5-10% है ना. खाने पीने का तरीका कैसा है? लगभग सेम है. हम लोग
लगभग एक ही एज ब्रैकेट के हैं, एक एज ब्रैकेट 8 to 12 है ना, 13 साल 14 साल 12 साल 13 साल से, वो एक आध दो छोटे भी हैं यहाँ पर, है ना, कितने साल की? 12। तो 12 साल से लेकर 18 साल तक है यहाँ पर, इज इट राइट? कोई 20-22 का भी है क्या? नहीं, 12 से 18 ये ब्रैकेट है ना। एक ही एज ब्रैकेट के लोग, एक तरीके से सोचने वाले लोग, एक तरीके के खान पान वाले लोग, एक ही समाज के लोग, एक ही तरीके की परवरिश हुई हमारी, एक ही तरीके की परवरिश हमारी होती है। हमारे पेरेंट्स 19-20 एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जैसा ट्रीटमेंट है, एक ही तरीके के स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं हम लोग, एक ही तरीके के, आई एम नॉट सेइंग एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन पैटर्न एक ही तरीके का है। इसके बावजूद हम किसी की स्टेटमेंट में एक मत थे क्या? विद द सेम ओपिनियन, ठीक है? यस और नो? नो। हम एक ही एज ब्रैकेट के, एक ही तरीके के पले बड़े लोग, एक ही तरीके का एजुकेशन मिल रहा, एक ही तरीके की फैमिली बैकग्राउंड है हमारा, एक ही तरीके की सराउंडिंग है, इसके बावजूद भी हमारे व्यूज और ओपिनियन एक जैसे नहीं है, नहीं थे। फिर मेरी प्यारी बेटियों, क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूं क्या कि हमारे अपने घर में 2 जनरेशन 3 जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं? कितने जनरेशन के लोग हैं? 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन, किसी किसी के घर में 4 जनरेशन भी होंगे, 3 जनरेशन तो पक्का है, 2 जनरेशन पक्की है। ये 2 जनरेशन 3 जनरेशन के घरों में एक ही व्यू होना चाहिए क्या किसी भी बात पर? एक ही ओपिनियन होना चाहिए कि किसी बात पर? यस प्लीज, यस प्लीज, आई एम आस्किंग यू। डिफरेंसेस हो सकते हैं ओपिनियन में? व्यूज में डिफरेंसेस हो सकते हैं? तो व्यूज में अगर डिफरेंस होते हैं घरों में, तो फिर हम नाराज क्यों होते हैं? व्हाई वी गेट अपसेट? अगर हमारे व्यू से हमारे फैमिली का व्यू एक्सेप्ट नहीं होता है, अलाइन नहीं होता है, मम्मा पार्टी में जाऊं क्या, पापा पार्टी में जाऊं क्या, मेरी इच्छा है पार्टी में जाने की, क्यों? इज माय व्यू, इज माय व्यू। और अगर पापा ने बोला नो सॉरी, ये पार्टी में जाना, दिस कैन बी हिज व्यू, हिज व्यू। हमें खुशी होती है कि नाराजगी होती? नॉर्मल कोर्स में क्या होगा? नाराजगी होगी, उनका व्यू गलत ही होगा हमेशा। यहां पर जो लोग एग्री कर रहे थे, जो लोग किसी स्टेटमेंट को एग्री कर रहे थे, वो ही राइट थे, और जो डिसएग्री कर रहे थे वो रॉन्ग थे, ऐसा बोल सकते हैं अपन? इनका ओपिनियन इनके वजह से राइट था, और उनका ओपिनियन उनके सोचने की वजह से राइट। इज इट इट? इज इट इट? तो मैं यहां पर अपनी सारी बेटियों को एक मैसेज दे सकता हूं क्या? मैं अपनी बेटियों को एक मैसेज इस तरीके का दे सकता हूं क्या कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पक्के रहेंगे, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने के बावजूद हमने दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इज इट? इज इट? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, इसलिए होंगे कि आप राइट हो हमेशा और वो रॉन्ग है, इसलिए होंगे क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? क्यों होंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? क्यों होंगे? सोचने का तरीका अलग होता है, किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, किसी का जो एज डेवलपमेंट हुआ है, जिस बैकग्राउंड से डेवलपमेंट हुआ है, वो अलग हो सकता है। इज इट? इज इट? हमें मालूम है कि हम अपनी टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी-कभी सोचते हैं कि ये अपनी टेक केयर नहीं कर सकती है, ये बहुत भोली है, ये बहुत नादान है, ये कोई भी इसको बहला सकता है, कोई भी इसको फुसला सकता है। इसलिए कई बार पेरेंट्स कुछ बातों के लिए हमारे ओपिनियन से डिफर करते हैं और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला। आर दे रॉन्ग? आर दे रॉन्ग? क्या मैं अपनी बेटियों को, क्या मैं यहाँ पर क्लास में, ये जितनी मेरी यहाँ पे बेटियां हैं, क्या मैं अपनी बेटियों को ये कह सकता हूँ क्या, विद दिस एक्टिविटी जो अभी हमने की, अगर हम किसी भी बात पर, किसी भी स्टेटमेंट पर अगर हम एक ओपिनियन नहीं कर सकते, तो हमारे घरों में 2 जनरेशन 3 जनरेशन में एक ओपिनियन होना ही चाहिए, ऐसा मैं सोचूंगी क्या? अलग अलग ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करूंगी कि नहीं करूंगी? मेरे ओपिनियन से अगर मेरे पापा का ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से अगर मेरे भाई का ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से अगर मेरे फ्रेंड का ओपिनियन डिफर करता है, तो मैं राइट हूं वो रॉन्ग है, ऐसा ही व्यू रखूंगी ना मैं?
यस प्लीज, हाँ ना। कितने लोग हाँ करें, ना बोले? कितने लोग ना बोलते? फाइन। पक्का है? पक्का है? क्या पक्का है? वी विल रिस्पेक्ट others' opinion even in the case of differences. Difference of views can be respected. मैं दूसरों के भी मत का आदर करूंगी, मैं नाराज नहीं होंगी, मैं चिल्ला चिल्ली नहीं करूंगी, मैं उनको निगेटिव रिमार्क नहीं दूंगी, मैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी। अगर मेरे व्यू से उनका ओपिनियन डिफर करता है तो इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। इज इट इट? हाँ, देयर मे बी n नंबर ऑफ रीजंस क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एज फैक्टर है, उनकी जिंदगी अलग टाइप की थी, उनका जमाना अलग टाइप का था, आपकी जिंदगी अलग टाइप की, आपका जमाना अलग टाइप का है, आपके सोचने का तरीका अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। इन सब बातों से व्यूज डिफर हो सकते हैं। इज इट राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, डिफरेंस ऑफ व्यूज रहा, तो घर में रिश्ते ठीक नहीं रहने चाहिए, घर में लड़ाई होनी चाहिए। आई एम आस्किंग, घर में लड़ाई होनी चाहिए अगर हमारे ओपिनियन डिफर करते हैं? ओपिनियन डिफर करेंगे कि नहीं करेंगे? कमाल। और अगर डिफर हुए ओपिनियन तो बट नेचुरली की लड़ाई होने वाली है, करनी भी चाहिए। क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं करेंगे हम लड़ाई? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, होंगे ही, और हमने दूसरों के ओपिनियन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें ये आदत लगनी चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए कि हम भी राइट है अपनी जगह और वो भी राइट है उनकी जगह। इस तरीके का व्यू अगर हमने बनाया तो हमारा रिश्ता हमारे परिवार में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा गहरा होगा, इवन विद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? मैं यहां पर खड़ा हूं सुबह से आपके साथ और आपके साथ बात कर रहा हूं और कल शाम तक करने वाला हूं। कल शाम तक नॉट नेसेसरी मेरी हर बात से आपने एग्री होना चाहिए। डज इट मीन कि आप और मैंने रिफ्ट लानी चाहिए? हाँ? जो बात एग्री कर सकती हो उस पर एग्री करो, जो बात एग्री नहीं कर सकती हो उसमें मत एग्री करो। मेरा व्यू, मेरा पॉइंट है, आपका व्यू, आपका पॉइंट, आपका पॉइंट। इजंट इट? हाँ? तो ये जो एक्टिविटी अभी हमने की उससे हमने क्या जाना, क्या समझा? कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? यस, खड़े होके बोलते हैं क्योंकि सबके लिए बोलना। ये दे दो। अभी जो हमने एक्टिविटी की, माय क्वेश्चन इज, अभी जो हमने एक्टिविटी की उससे हमने क्या जाना, क्या समझा? At any situation, there are different opinions from different people, and we should learn to respect everyone's opinion. We should learn to respect other opinion. Is it right? कितने लोग इसकी बात से अभी एग्री करते हैं? फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में? अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे? क्या फॉलो करना है? रिस्पेक्ट others' opinion even if it differs. difference, respect अगर ये स्वभाव बन गया आपका, अगर आपके स्वभाव में आ गया कि दूसरे लोगों के ओपिनियन अलग होते हैं और फिर भी हमने उनके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो मेरी बेटी ने अपने स्वभाव में ये वाली बात ला ली, लिसन टू मी, जो मेरी बेटी अपने स्वभाव में ये बात लाएगी उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेगी। फ्यूचर फैमिली में जाओगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और उससे नाराजगी नहीं होगी, उनके भी ओपिनियन का रिस्पेक्ट करते आएगा। माँ थी, माँ से लड़ ली, झगड़ ली, वहां वाली मम्मी जी है ना, यहाँ तो मम्मी है, वहां क्या रहने वाली है? मम्मी जी हो जाएगी वहां पर। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अगर हमने रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्या होने वाला है? फ्रेंड है, फ्रेंड यहाँ पर अभी जो हमारे साथ स्कूल में शुरू से पढ़ रहे हैं, ये वाले जो फ्रेंड्स हैं, इनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, चल जाती बात। अभी थोड़े दिन में कॉलेज में जाओगे सब लोग, वहां नए फ्रेंड बनेंगे, वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो लड़ाई झगड़ा करना है क्या हमको? नहीं करना। हमें क्या करना है? what we have to understand, we have to respect the difference of opinion. Is it okay with us? और वो क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? There are different experience, अलग अलग अनुभव रहते हैं लोगों को,
आपको अपने अनुभव है, यू हैव गॉट सर्टेन एक्सपीरियंस, दे हैव गॉट सर्टेन एक्सपीरियंस, सूचना, सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज, बिकॉज ऑफ सम इंफॉर्मेशन एंड सम नॉलेज मेरा ओपिनियन बनता है, देयर ओपिनियन, देयर नॉलेज उनका ओपिनियन बनाता है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, आई हैव गॉट लाइकिंग फॉर सर्टेन थिंग्स, उससे मेरा ओपिनियन बनता है, दे हैव गॉट लाइकिंग फॉर सर्टेन थिंग्स, उससे मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद है, कहाँ गई मेरी वो बेटी घूमना, हाँ मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद है, बाहर जाना बहुत पसंद है मेरे को, है ना? सो मूवमेंट, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से दोस्ती करना, नए लोगों की जानकारी लेना, नई जगह जाना मेरे को अच्छा लगता है, इसे ट्रेड। कुछ लोग घर में ऐसे होते हैं कि ज्यादा नया 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 पसंद नहीं है, जितना अपना लिमिटेड सर्कल है उतना ठीक है, नई जगह धोखा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, मेरी बेटी को प्रॉब्लम फेस कर नहीं करना पड़े इसलिए हम एक दायरा कर देते हैं, इससे बाहर मत जाओ, तो वो गलती है, isn't it? हाँ? वो अपनी जगह सही है, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनकी लाइकिंग्स अलग टाइप की है। हम सब के लिए मैं मैसेज दे रहा हूं कि ऐसा होता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ऐसा होता है, भावनाओं के कारण, बिकॉज ऑफ द इमोशंस, किसी के इमोशन किसी टाइप की, किसी के इमोशन किसी टाइप की, इसलिए भी डिफरेंस ऑफ व्यूज आता है, एंड अपने अपने विचार होते हैं, अपना अपना मत होता है, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, हमारा our own thought process, अपने विचार, our own opinions, उनके अपने ओपिनियन है, मेरे अपने ओपिनियन, isn't it? इन सब बातों की वजह से डिफरेंसेस हो सकते हैं, होते हैं। कोई अच्छे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स में जो बहुत फास्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, यहां पर भी मेरे को देखने को मिलते हैं, कुछ लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, है ना? क्लोज फ्रेंड है कि नहीं है ना? तो हर बात में एक ही मत होता है, नॉट नेसेसरी। मैं यहां भी देख रहा था कि अपने अपने इतने स्टेटमेंट में भी क्लोज फ्रेंड के भी अलग अलग व्यूज थे, ठीक है नहीं थे? तो ये बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इज इट राइट? इज इट ओके विद अस? और दूसरों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारा ओपिनियन है उस पर फर्म रहना चाहिए और दूसरों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी, क्योंकि कोई भी बात पूरी तरीके से रॉन्ग भी नहीं है और पूरी तरीके से राइट भी नहीं, अपने अपने एंगल से सब बातें राइट और रॉन्ग होती है, कोई भी बात अपने आप में पूरी राइट नहीं है, अपने आप में पूरी रॉन्ग नहीं। इज इट ओके विद अस? और इसमें से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी बात पूर्णतः सही और पूर्णतः गलत नहीं होती, और इसीलिए हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। हमारे रिश्ते, हमारे जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पड़ोसी हैं, जान पहचान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। मम्मी ऐसी है, पापा तो ऐसी है, पापा तो बस हमेशा ही निगेटिव 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 पापा। हम कल बात करेंगे पापा लोगों से, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, या आपके पापा को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो रिस्पेक्ट करेंगे उनके व्यू का, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे व्यूज का? करना चाहिए ना? डिफरेंस होते कि नहीं होते? लेकिन वन साइडेड ही चलता है काम, कि बस मैंने जो बोला वही कायदा है, वही नियम है, वही फाइनल है। कल वो यहां पर आएंगे तो कल उनको मैं बताऊंगा ये वाली बात, उनको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि व्यूज होते हैं अलग अलग, और आपने भी अपनी बेटियों का, अपने बेटों का, अपने बच्चों के व्यू का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए उनको? मैंने आपके बिहाफ पे मैंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कुछ बातें जो आप नहीं बोल सकते हो ना, मैं बोल दूंगा मजाक मजाक में, हंसी मजाक में, आपकी सब बातें उनसे शेयर कर दूंगा। इज इट ओके विद अस? एंड बिलीव मी, कल के सेशन के बाद आपकी एज ए फैमिली आप में बहुत ओपननेस आ जाएगा, बहुत सारी बातों का ओपननेस आ जाएगा। इज इट इट? डन? ऑल डन? नेक्स्ट एक और खेल खेलते हैं, और उस खेल का नाम है ये क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। उस खेल का नाम क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन। एक्टिंग करनी है, एक्टिंग। मेरे को 4 लोग चाहिए, 4 लोग मेरे को जल्दी चाहिए, 4 लोग। वाओ, 5 हो गए, 5 हो गए। आजा, चुटकी तो पहले आती है हर बात।
I want 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1 more. अच्छा चलो आप दो बार, आप दो बार. 1 and I. तू जा रही कि मैं जाऊं? बोल, तू जा रही कि मैं जाऊं? हाँ चल मैं जाऊं. हाँ चलो बैठो भाई. इसका नंबर लास्ट में लगा है ना? तुम इधर, तुम चारों 2 मिनट के लिए गेट के बाहर. मैं एक एक करके बुलाऊंगा. हाँ जाओ गेट से बाहर. हाँ सुनो, थोड़ा सा 4-6 स्टेप्स ऊपर चली जाओ. दिखना लेकिन वहां से, यहाँ से गेट में से दिखना. ऐसे सुनो, तुम भी आ रही थी. आओ जरा एक वॉलंटियरिंग करो मेरे लिए. जाओ आप लोग जाओ. आप जब उधर गेट के पास जाओ, गेट के पास खड़े हो और देखो, सुनो, अपनी आवाज उन तक नहीं जाए ऐसी जगह पे खड़ी हो गई. मैं माइक बंद कर दूं. अपनी आवाज नहीं जाना उन तक. उसको अंदर बुला. तुम अंदर खड़ी हो, वो दूर है ना, थोड़ा ध्यान रखना जरा उनकी तरफ आवाज नहीं जाना. नाउ लिसन, क्योंकि मैं माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, आपका कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए. मैं यहाँ पर एक एक्टिंग कर रहा हूँ. ठीक से देख रहे हो, मैं एक एक्टिंग कर रहा हूँ और सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ. इसलिए सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ कि एक को अपन बुलाएंगे वहां से, उसके लिए तुमको करनी है एक्टिंग वही सेम जो मैं कर रहा हूँ. इसलिए जितना ध्यान से देखोगी तो वैसा ध्यान से उसको करके बताओ. मैं जब एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं एक रनिंग कमेंट्री कर रहा हूँ साथ में, लेकिन तुम जब एक्टिंग करोगे तो बोलना नहीं, बिना बोले सिर्फ एक्टिंग करना. यू डिड नॉट हैव टू एक्सप्लेन. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. आज संडे का दिन है और मैं घर में अकेला फ्री. मेरे घर में एक मेरा हाथी. मैं हाथी कैसे बता रहा हूँ? ऐसे बता रहा हूँ. ऐसे नहीं बता रहा, ऐसे नहीं बता. हाथी कैसा है? खूब बड़ा हाथी है ऐसा, और जरा गंदा है. आज इसको मेक हिम बाथ, इसको नहलाते हैं. ओके, किसको? किसका है वो? मेरा है ना. तो यहाँ जब खड़ी होगी तो तू अपना बोला, मुझे तो ये बहुत ठीक है. मेरे घर में घुमा है. क्या कर रहा हूँ? बकेट में डाला, बकेट उठाया. जब वेन्यू टेक बार ऊंचा बोलते हैं वही नोटबुक रख. तो नहीं बना सकते. क्या समझ गए? किधर आए? इधर. क्या समझ गई? हाँ? पूरा स्टोरी ध्यान में आ गया सबको? एक बढ़िया क्लैप हो सकती है मेरे लिए. एक को बोला तेरे चॉइस. हेलो, वेलकम वेलकम. ये अपने चीफ गेस्ट आ गए आज के प्रोग्राम में. चीफ गेस्ट प्लीज हैव योर सीट. चीफ गेस्ट आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये कुछ यहाँ पर एक्शन करके बता रही है आपको. इसको ध्यान से देखना.
यही वाला एक्शन आपको अगले चीफ गेस्ट के लिए करना है। ओके, हमको किसी को बोलना है क्या? इसको बोलना है क्या? क्या परफेक्ट किया है सर? अपनी जगह पे बैठो। आओ, कम। आपको पूछ रहे नहीं हम कुछ। कम। I am not asking anything to you. I am not asking anything to you. ये अपने नए चीफ गेस्ट आ गए। आज आप चीफ गेस्ट हमारे फंक्शन के बैठे। हाँ? कौन है आप? चीफ गेस्ट। एक बार जरा चीफ गेस्ट के लिए क्लैप करो। चीफ गेस्ट, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए खड़ी है यहाँ। ये यहाँ पर कुछ एक्शन कर रही है। ध्यान से देखना, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। ओके? और फिर अगला चीफ गेस्ट आएगा, उसके लिए आपको करना है ऐसा। आपको ऐसा करना है, इसलिए ध्यान देना। कम ऑन स्टार्ट। अभी बोलना कुछ नहीं है, मजा लो। यस, स्टार्ट। Only once. Huh? Done? Okay. ये बाहर नहीं जाओ, अपनी जगह पे जाओ। इससे बातें नहीं करना है किसी ने। ओके? हेलो। ये बातें नहीं करो। One more chief guest, please come. आज के फंक्शन के आप चीफ गेस्ट हैं, बैठिए। Have your seat. और ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्शन कर रही है, एक्टिंग कर रही है। ध्यान से देखना, यही एक्टिंग आपको अगले चीफ गेस्ट के लिए करना है। Come on, start. Done? Good. बातें नहीं करना। पड़ोसियों को कह रहा हूँ मैं, बातें नहीं करना। आज के प्रोग्राम के आप चीफ गेस्ट इसके साथ क्लैप करके और वेलकम कर रहे हैं। बैठिए बैठिए। चीफ गेस्ट का सीट है ये। और ये चीफ गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ एक्शन कर रही है। कोई है बाहर आओ? अब खत्म हो गया सब? आ जाना। ये अपने लास्ट चीफ गेस्ट है।
क्या हमारे को समझा के करना नहीं, सब समझाते करना। बोलना आप क्या क्या कर रही हैं आप बता दे। पर उसने ऐसे पूरा उसमें क्या किया करो। हाँ क्या कर रहा? पूरा कुछ तो भी उसने कपड़े धोए कपड़े। डाल दिया दूरी में बाद में टोली में डाल दिया कपड़े। हाँ? उसको कैसे कपड़े धोए ऐसे कपड़े डाल दिए। किसने इसको बताया था ये? आगे इतना यही बताना चाहती थी। तुमको क्या पता चला? तुमको जब कर बता रही थी क्या पता चला? तुम क्या कर रही थी? आलस किया? कैसे उधर क्या किया? कपड़े धो रही थी? आप कपड़े धो रही थी क्या? हाँ 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 ऐसा लटका के फिर ऐसा क्या किया? हाँ पोछ रही थी कपड़े लटका के। कौन सा इसको कौन ने समझाया था इसको? तुम क्या समझी थी उससे क्या? तुम आलस किया? पहले एक बार इधर डालो तो हाँ क्या 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 ऐसे क्या क्या तुम क्या समझी? क्या क्या था एक्शन में? क्या था? हाँ? पोछा लगा रही थी? पानी वगैरह डाला नहीं था और पोछ नहीं। अच्छा तुम क्या समझी थी उससे? उसने क्या समझाया था? ओके सुबह आलस किया हाँ फिर पानी भरा पानी भरा फिर पानी डाला फिर वो पोछा हाँ 2-3 बार पोछा दो तीन बार हाँ मेरी हाँ 2-3 बार पोछा फिर वहाँ पे गए कुछ गंदी भाषा है कितनी बात है? हाँ 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 कब तक? अब कपड़े सुखा रही थी? क्या बताओ? इसने शुरू किया था बताना। यार सबको वापस से बता क्या कर रही थी? डरते या बोलते रहे?